نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معزز بزرگان دین نوجوان ساتھیوں معصوم نونہالوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف توصیف بزرگی کبریائی بڑائی اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق زیبا اور سزاوار ہیں جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے اس کی تسبیح و تحلیل گنگنائی جائے اور زبان سے کہا جائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ معزز حاضرین جمعہ سماج اور معاشرہ اسی وقت پاک و صاف رہتا ہے جب سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد نیک طینت نیک طبیعت خوش اخلاق اور باکردار ہوں وہ سماج جس کے اندر بے حیائی عام ہو جائے جرائم کا ارتکاب ہونے لگے عریانیت فحاشیت یہ اپنے آپ میں دور تک پھیلتی ہوئی نظر آنے لگے تو پھر وہ سماج اسلامی سماج تو دور کی بات ایسا سماج
جانوروں سے بھی بدترین سماج بن جاتا ہے۔ یہ سماج اور معاشرہ مجھ سے اور آپ سے مل کر بنتا ہے، اور میرے اور آپ کے اخلاق اور کردار جس انداز سے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اس سماج اور معاشرے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سماج اور معاشرے کو بنانے میں، بگاڑنے میں انسان کا بڑا کردار اور بڑا رول ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے سماج کو خود اچھا بن کر اسلامی سماج اور معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اسی سماج کو بے حیائی، عریانیت اور فحاشیت اور ننگے پن کے ذریعے سے اس سماج اور معاشرے کو بگاڑ سکتے ہیں۔ جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھے انداز سے معلوم ہونی چاہیے، سماج اور معاشرہ جتنا پاک و صاف رہے گا وہ ہمارے اور آپ کے اچھے رہنے سے رہے گا، اور اگر ہم بگڑ گئے تو سماج اور معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ حیا کے زیور کو اپنائیں، اور بے حیائی کے جو راستے ہیں ان راستوں سے اپنے آپ کو روکنے کے حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے، اور اسے ایمان کے حصے سے جوڑ دیا ہے۔ رب العالمین نے بھی حیا کے بارے میں کہا ہے، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حیا کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیاداری یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اگر ہم بے حیا بن جاتے ہیں اور بے حیائی ہمارے درمیان میں عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر بے حیائی عام ہو جائے، جب تم خود بے حیا بن جاؤ تو پھر تم جو من میں آئے وہ کرو، پھر تمہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اور پھر تمہیں وہ بے حیائی کی چیزیں بھی معمولی نظر آئیں گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کو کس انداز سے روکا ہے، اللہ رب العالمین نے کس انداز سے بے حیائی کی مذمت بیان کی ہے، قرآن و احادیث میں اس کے بے شمار دلائل ہم کو ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظروں کی حفاظت کی بڑی تلقین کی ہے۔ جہاں اہل ایمان کو اپنی نظروں کی حفاظت کی بات کہی ہے، وہی اللہ رب العالمین نے مومنہ عورتوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ بے حیائی، بے شرمی اور ننگے پن کی پہلی سیڑھی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان سے کہہ دے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور وہیں مومنہ عورتوں کو بھی یہی پیغام دیا ہے۔ آپ نے مومنہ عورتوں کو اس انداز سے مخاطب فرمایا ہے، رب العالمین نے فرمایا، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ النظر سہمۃ من سہام ابلیس، کیونکہ نظر یہ شیطان کی تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا العینیان تزنیان، کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان کا زنا کسی کو لذت بھری نظروں سے دیکھنا ہے۔ چنانچہ نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی بنا پر انسان بے حیائی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کتنی بڑی واقعہ میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں، بغداد کا واقعہ ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، بغداد کی ایک مسجد تھی جس میں ایک مؤذن تھا جس کا نام تھا صالح مؤذن۔ کتنے سال وہ اذان دیا معلوم ہے؟ تقریباً 40 سال تک انہوں نے اس مسجد کے میناروں سے چڑھ کر اذانیں دی، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، نمازوں کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ بات ابن جوزی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے بات سامنے آئی ہے کہ صالح المؤذن ایک دن مسجد کے مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھتا ہے۔ اچانک اس کی نظر
पड़ोस में रहने वाले नसरानी घर के ऊपर पड़ती है जहां पर एक खूबसूरत लड़की थी। ये मस्जिद का मुअज्जिन जरूर है, लेकिन ये अपने दिल को उस नसरानी खूबसूरत औरत के ऊपर दे बैठता है। अंजाम कार ये होता है, अजान से फारिग होने के बाद ये इंसान उस औरत के पास जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन है? ये जवाब देते हैं कि मैं साले मुअज्जिन जामा मस्जिद का मुअज्जिन हूं। दरवाजा खोल दिया जाता है और ये इस औरत के ऊपर, इस लड़की के ऊपर अपने दिल को दे बैठता है। चुनांचे औरत कहती है कि तू इस अंदाज से मेरे ऊपर हावी होना चाहता है, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है कि नहीं, मैं आज अपनी हवस को पूरा करूंगा, अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुझे मार दूंगा। ये लड़की बड़ी परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तैयार हूं, बस शर्त यह है कि आप अपने मजहब को छोड़ दे और नसरानियत को कबूल कर ले। चुनांचे वो इंसान कहता है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मुखालफत करते हुए नसरानियत को कबूल करता हूं। वो औरत कहती है कि हो सके ये तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बात कही हो, लिहाजा आप ये सुअर का गोश्त है ये पहले खाइए, क्योंकि ईसाइयों के अंदर सुअर का गोश्त खाया जाता है। ये मस्जिद का मुअज्जिन सुअर का गोश्त खाता है। और शराब पीने के लिए कहती है, वो शराब भी पीता है। अभी शराब के नशे में ही था, वो अपने आप को बंद कर लेती है और ये बाहर तड़पता हुआ रहता है। थोड़ी देर के बाद इसका बाप आता है और कहता है कि माजरा क्या है। ये औरत कहती है, ये लड़की कहती है कि ये इस मस्जिद का मुअज्जिन है और इन्होंने इस अंदाज से मेरे ऊपर गलत नजर डाली है और अपनी ख्वाहिशात के लिए यहां पर आया है, मुझसे शादी करना चाहता है। जैसे ही वो बाप को देखता है, यहां से वो छत के ऊपर चढ़ता है, छत से फिसलता है और उसकी मौत तारी हो जाती है। मेरे भाइयों, एक मामूली सी नजर जिसे हम मामूली समझते हैं, ये इंसान को कहां तक लेकर चली जाती है, इसका अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है, एक अरबी शायर कहता है, फन नजरो फब्तिसामो फसलामो फमौइदुन फकलामुन। एक नजर, फिर होठों पर तबस्सुम, फिर इंसान सलाम करता है, फिर कलाम करता है, फिर मुलाकात की बात करता है और अंजाम कार यही होता है कि वो बेहयाई के उस दलदल में फंस जाता है जिसके ताल्लुक से हमको और आपको रोका गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से नौजवान इस्लाम की तरबियत करते थे, नौजवान इस्लाम की तरबियत करते थे। एक नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान तो होना चाहता हूँ, इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ, मैं कलमा भी पढ़ लिया हूँ, लेकिन मैं तुझसे एक चीज की इजाजत तलब करता हूँ, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नौजवान इतनी ही बात कहता है, सहाबाई किराम इसे डांटने लगते हैं, डपटने लगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखिए, आपका किरदार देखिए, समझाने का आपका अंदाज देखिए। इस नौजवान को अपने करीब करते हैं, अपने करीब बिठा लेते हैं और इस नौजवान से कहते हैं, ए नौजवान, जिस चीज की तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहा है, क्या इस चीज की इजाजत आप अपनी मां के लिए देंगे कि आपकी मां किसी के साथ इस अंदाज से हरकत करे? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस चीज की इजाजत हरगिज किसी के लिए नहीं दे सकता। आपने कहा कि जिस चीज की तुम मुझसे इजाजत तलब कर रहा है, उसी चीज की इजाजत कोई आपकी मां के ताल्लुक से तलब करे तो आपका रवैया क्या होगा? आपने कहा कुर्बान जाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो नौजवान से फिर आपने कहा, जिस चीज की इजाजत आप मुझसे तलब कर रहे हैं, क्या यही चीज की इजाजत आप अपनी बेटी के लिए, आप अपनी बहन के लिए, आप अपनी फूफी के लिए, आप अपनी खाला के लिए देंगे? ये नौजवान कहता, नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस चीज की इजाजत हरगिज हरगिज किसी के लिए नहीं देता कि वो कोई मेरी माँ के साथ जिना करे, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी फूफी और मेरी खाला के साथ करे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے لیے دعائیہ کلمات دیتے ہیں، اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا واحسن فرجا، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک و صاف کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے۔ لہذا آج کتنے سارے ذرائع ہیں، کتنے سارے ذرائع اور اسباب ہیں جن کی طرف آج انسان مائل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے اور برائی کے اس دلدل میں اس انداز سے پھنستا ہوا چلا جا رہا ہے کہ اسے احساس تک نہیں ہو پا رہا ہے۔ آج سوشل ذرائع، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی دنیا، موبائل فون، مختلف قسم کے اسباب آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج کس انداز سے ہم اور آپ ان کے ذریعے سے بے حیائی کے دلدل میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ تقاریریں ہو رہی ہیں، خطبات بھی ہو رہے ہیں، دروس بھی ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کے جلسے بھی ہو رہے ہیں، ان میں برائی کو روکنے کی حتی الامکان کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے برائی کا جو پیمانہ ہے وہ بلند تر بلند ہوتا چلا جا رہا ہے اور برائی سے روکنے کی باتیں ہوتی ضرور ہے، لیکن پھر بھی برائیوں پر قدغن عائد نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ آج برائی کا گراف بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے اور دینداری کا گراف یہ گرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا آج اس انداز سے انسان اس کے اندر الجھا ہوا ہے کہ وہ نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا ہے، جبکہ یہ چیز ضرورت کی ہے۔ اس کو صرف ضرورت رہنے دے، ورنہ انجام کار یہ ہوگا کہ اگر یہ انسان کے اوپر غالب آ جائے گی تو پھر انسان تباہی اور بربادی کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا جائے گا۔ ایک صحیح واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان کہیں کال کرتا ہے اور اتفاق سے وہ رونگ نمبر ہوتا ہے، ریسیو کرنے والی ادھر سے کوئی لڑکی ہوتی ہے، یہ انسان اس سے بات کرتا ہے، وہ بھی ادھر سے بات کرتی ہے، اتنا کہہ کر فون کو کٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ رونگ نمبر ہے، آپ اس پر دوبارہ کال نہ کرو۔ لیکن انسان برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو شیطان بھی اس کے لیے برائیوں کے راستے کو ہموار کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ انجام کار یہ ہوتا ہے دوبارہ فون کرتا ہے، ادھر سے بچی پھر فون کو ریسیو کرتی ہے، تھوڑے دن تک اسی انداز سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ بات چیت ان کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو فوٹو بھیجائے جاتے ہیں، یہ اپنی فوٹو بھیجتا ہے، ادھر سے بچی اپنی فوٹو بھیجتی ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، انجام کار یہ ہوتا ہے پھر ملاقات کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، وہ ملتے ہیں، بدکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں، چنانچہ انجام کار یہ ہوتا ہے یہ انسان اس بچی کی عزت سے کھلواڑ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے جب اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیتا ہے کہ میں تجھ جیسے بے غیرت بچی سے شادی نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو شادی سے پہلے کسی غیر مرد سے بات کر سکے، جو نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ اپنی عزت سے کھلواڑ کرا سکے، وہ عورت سے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ انجام کار یہ ہوتا ہے ایک معمولی سی کال جو اس بچے کی طرف سے گئی تھی اس بچے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ آج ہم اور آپ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ایک حدیث سنائی ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لوگ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، بڑی بڑی نیکیاں بھی کریں گے، حتیٰ کہ ان کے پاس اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ تہامہ کا پہاڑ جتنا بڑا ہے اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن ان کی نیکیاں بھر بھرے ریت کی ڈھیر کی طرح ختم کر دی جائیں گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کے سامنے تو بڑے اچھے رہتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ خلوت نشینی میں جائیں گے وہ بڑی بڑی برائیوں کا ارتکاب کریں گے۔ یہ حدیث آپ نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، لیکن آج اس کا مفہوم یہی ہے۔ آج ہر ایک کے پاس
फोन है स्मार्ट फोन, उसके अंदर बताइए हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के सामने तो बड़े नेक नजर आते हैं, लोगों के सामने तो हम दीनदार नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही तन्हाई हमें नसीब होती है हम बुराइयों के दलदल में फंसने से भी अपने आप को नहीं रोक सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें और आपको ये पैगाम देती है कि तन्हाई में रहे, चाहे खलवत में, चाहे जलवत में, चाहे लोगों के दरमियान में रहे, चाहे बंद कमरे में, चाहे भरे बाजार में रहे, ये तन्हाई में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए। अगर इंसान तन्हाई में किसी बुराई का इर्तिकाब करता है और फिर उस बुराई का इर्तिकाब करते हुए अगर उसकी ज़मीर जिंदा है तो बुराई से रुक जाएगा, वरना अगर उसका ज़मीर मर चुका है तो उस बुराई के दलदल में फंसता हुआ चला जाएगा। मेरे भाइयों, तन्हाई में किसी बुराई का इर्तिकाब करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत को याद कर ले, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। ए बंदा, तू तो आज बंद कमरे में है, तुझे तो कोई देखने वाला नहीं है, खिड़कियां भी बंद कर दी है, दरवाजों पर भी कुफ्ल लगा दिया है, लेकिन मेरा रब का जो कैमरा है वो तेरे साथ लगा हुआ है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि ये नहीं जानता कि उसका रब उसे देख रहा है, उसका रब उसे देख रहा है। आज मेरी और आपकी हालत क्या होती है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, उस वक्त हमारा कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं, कहीं हम कोई गलत एक्टिविटीज करते हुए ना मुलविस हो जाएं, ना पाए जाएं। हम भूल जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरों को, और दुनिया के कैमरों से हमें डर लगता है। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या ये नहीं जानता कि उसका रब उसे देख रहा है। ये जहन में हमारे और आपके दिमाग में बैठ गया तो इंशाअल्लाह हम बुराइयों के दलदल से रुक जाएंगे। ए नौजवानों, आपके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल काफी है कि एक औरत है जो खूबसूरत भी है, वो उसे अपनी तरफ माइल भी करती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मामूली औरत भी नहीं है, बल्कि हुस्न जमाल की पैकर भी है, मलका भी है, उसके पास शोहरत भी है, इज्जत भी है, कोई देखने वाला नहीं, बंद कमरे के अंदर मौजूद है। वो औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है, आओ अपनी ख्वाहिशात की तकमील करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम हाशा लिल्लाह कहते हैं, अल्लाह की पनाह, मैं हरगिज इस बुराई में नहीं आ सकता। वहां कौन था देखने वाला? अगर चाहते तो अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर सकते थे, लेकिन जो इंसान अपने आप को बुराइयों से बचाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बुराई से बचने के लिए उनके रास्ता मुहैया कर देता है। ऐसे नौजवानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अजीम खुशखबरी सुनाई है, जिसको कोई खूबसूरत औरत बुराए, जिना की तरफ, बदकारी की तरफ, बेहयाई की तरफ, इदा दातुम राती दात हस्बिन व जमालिन, खूबसूरत भी हो, हसब व नसब वाली भी हो, आला खानदान की भी हो, और फिर वो उसे बुराई की तरफ बुराए, और इंसान अपने आप को बुराई से रोक लेता है और कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नौजवान उस दिन, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान को अपने अर्श के साये के तले जगह नसीब फरमाएगा। आज बाजारें खुले हुए हैं, आज हुस्न की नुमाइशें हो रही हैं, इंसान को अपनी इज्जत बचाना भारी पड़ रहा है। मखलूक निज़ाम तालीम का जो सिस्टम हमारे और दरमियान में आया है, इंसान अपनी इज्जत बचाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। हर चार जानिब फितने ही फितने हमको नजर आते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको इन फितनों से रोका है। आपने फरमाया कि लोगों याद रखो, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खदिरा व इन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा फयंजुरू कैफ तअमलून फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। लोगों याद रखो, ये दुनिया सरसब्ज और शादाब है, शीरी है, इंसान को अपनी तरफ माइल करने वाली है। अल्लाह तुम्हें देखना चाहता है कि तुम दुनिया में रहते हुए किस अंदाज से अमाल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की फितना अंगेजियों से भी बचना और औरतों के फितनों से भी अपने आप को बचा के रहना। मेरे भाई, आज ये हकीकत है कि जहां इंसान को अपना ईमान बचाना भारी हो रहा है, वहीं हमें अपनी बच्चियों को दीन पर लगाना भी भारी से भारी होता हो चला जा रहा है। एक औरत जो गरचे मस्जिद की तरफ आए, मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आए, लेकिन उसके पीछे की एक वजह यह है कि वो अपने आप को खुशबू में मुलविस कर ले, परफ्यूम लगा कर आए। मैं उस औरत की बात कर रहा हूं जो मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने के लिए आती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह मिनल मसाजिद, तुम अल्लाह की इन बंदियों को मसाजिदों में आने से मत रोको। लेकिन मैं अपनी उन बहनों से मुखातब हूं जो मस्जिद की तरफ आते हैं, मेकअप करके आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम लगा कर आते हैं। आप आ रहे हैं अल्लाह की घर में इबादत के लिए। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि जब कोई औरत इस अंदाज से खुशबू में मुअत्तर होकर निकलती है, इस तशरफ शैतान, शैतान उसके पीछे पीछे चलता है। फहिया कदा व कदा, आपने फरमाया वो ऐसी और ऐसी है, और फरमाया फहिया जानिया, वो औरत जिना करने वाली फाहिशा औरत है। कौन सी औरत? जो औरत मस्जिद के लिए घर से आ रही है, लेकिन वो किस अंदाज से आ रही है, उसका अंदाज को भी तो देखिए। आज फैशन के नाम पर किस अंदाज की बेहयाई हमको नजर आती है। वो लिबास जिसको छिपाने की भी बात कही गई है, वो नुमाइश करती हुई नजर आ रही है। आज लगता है इस बुर्के पर भी एक और बुर्का पहनने की जरूरत महसूस की जा रही है। जर्क बर्क लिबासे, मुख्तलिफ किस्म के टाइट लिबासे पहनकर आज हमारी घरेलू खवातीन इस अंदाज से बन सवर कर निकलती है, जबकि उसके लिए यह था कि अपने शौहर के लिए वो बनती संवरती, अपनी शौहर को खुश करती। आज मामूली से फंक्शन के लिए वो निकलती है, किस अंदाज से निकलती है, उसका मुशाहिदा हम और आप शादी और ब्याहों में देख सकते हैं। मेरे भाइयों, इस औरत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है कि औरत, तेरे लिए तो इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी ने कही है कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होनी चाह दाखिल हो जा, लेकिन वो उन औरतों के लिए है जो दीन के उसूलों पर अपनी जिंदगी गुजारती है। वरना यही औरत जो दीनदार भी है, लेकिन फिर जब घर से निकलती है तो इस अंदाज का अपना बनाव श्रृंगार करती है, उस औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी वईद बयान फरमाई है। मेरे भाइयों, ज़माना जाहिलियत की तरफ भी देखना चाहिए। यह आयत हमारे सामने से बार बार गुजरती है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन वहुवा कज़ीम, कि जब उनके घरों में कोई बेटी पैदा हो जाती थी तो उनके चेहरे मारे बेटी की पैदाइश पर स्याह हो जाते थे। वो कौम से डरते और छिपते रहते थे कि लोग उन्हें ये ताना ना दे कि उनके घर में बेटी पैदा हुई है। क्यों? उसकी तफसीर जब हमने पढ़ी, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, क्यों अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा दबा देते थे। वो इस बिना पर बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी बड़ी होकर हमारा नाम बदनाम कर दे। कहीं हमारी बेटी जब हम किसी को थमाए, कोई हमारे घर पे दामाद बनकर आए, उन्हें ये चीज गवारा नहीं थी। वो इतने ज्यादा गैरतमंद हुआ करते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसीलिए एक जाहिल देहाती अरबी उसके बारे में आता है कि कुछ लोग उसकी बीवी की तरफ देख रहे थे। इसने देखा कि लोग अपनी नजरों से मेरी बीवी को देख रहे हैं। इस मर्द मुजाहिद ने क्या किया, अपनी बीवी को तलाक दे दिया। कहने वाला ने कहा कि तू अपनी बीवी को क्यों तलाक देता है? कहा लिकसरत शुरका फीही, बहुत सारे लोगों की नजरें मेरी बीवी के ऊपर पड़ी है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं इसे अपने पास रख लूं। और फिर उसने ये बात भी कही है, असून इर्दी बिमालिन, कि मैं अपने माल के जरिए से अपनी इज्जत की हिफाजत करता हूं, और जिस माल के जरिए से मैं अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकता। ला बारकल्लाहु बादल इर्द फिल माली, अल्लाह ऐसे माल में कोई बरकत ना दे जब इज्जत के ऊपर धब्बा और डांट लग जाए। और उसने फिर कहा कि जब किसी चीज में मक्खी गिर जाती है तो हमारा दिल चाहता है, फिर भी हम उससे खाना नहीं खाते। और जब शेर के घाट से
कुत्ता पानी पी लेता है तो उस घाट से फिर शेर दोबारा पानी नहीं पिया करता। बात बड़ी है, उन्होंने जो बात कही उनकी गैरत की दलील है कि वो इतनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी औरत के ऊपर कोई गलत नजर रखे। मेरे भाइयों, आज हालात के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। और आखिर में ये पैगाम भी देना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत जिसकी खुशबू बहुत दूर से आएगी, तकरीबन 70 मील की दूर से आएगी, लेकिन आपने फरमाया कि इंसान ऐसा भी होगा जो दयूस है, उसे उसकी खुशबू तो दूर की बात, उसे जन्नत तक भी नसीब नहीं होगी और ना उसकी खुशबू से महसूस होगी। आपने फरमाया कि वही इंसान जो अपनी जवान बहन और बेटियों, अपनी बीवी के ऊपर खुली आज़ादी देता है और उन्हें इस अंदाज से छोड़ देता है कि वो जहां जाना चाहे वहां जाए और उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाता, तो ऐसे इंसान को दयूस करार दिया गया है। हम अहले ईमान ही, तौहीद परस्त है, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने आप को जहन्नम से बचाएं और अपनी खवातीन को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों के ऊपर भी हम कड़ी निगरानी रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेहिसी की बिना पर वो अपना दीन भी बेच दे और अपना ईमान भी बेच दे। आज हम और आप नहीं देखते, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें पढ़ती तो जरूर है, लेकिन कितने ऐसे वाकयात होते हैं कि हमारी ये बेटियां, हमारी ये बहनें गैर मुस्लिमों के साथ शादी ब्याह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अलायासु बिल्लाह। मेरे भाइयों, इसीलिए शरीयत मुतारा हमको ये पैगाम देती है कि उनकी दीनी तरबियत की जाए, उन्हें दीनी इक़दार में ढाला जाए, उन्हें दीन के मुताबिक चलने की हद तक इम्कान कोशिश की जाए, क्योंकि दीन के जरिए से ही दीनदारी आती है। और जब बददीनी आम होगी तो फिर बेहयाई के रास्ते हमारे और आपके लिए हमवार होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो बेहयाई के बढ़ते हुए रुझानात है, इन पर कदगने आयद किए जाए। मखलूक तालीम निज़ाम जहां पर है, वहां से अपनी बच्चियों को रोककर ऐसी जगह पढ़ाया जाए जहां बच्चियों के अलग से तालीमात होती है। साली और बहनोई का जो रिश्ता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन इतनी खुली आज़ादी ना दी जाए कि वो साली को कहे कि वो तो मेरी आधी घर वाली है। इसी अंदाज से अल्लाह ने जिनको माल दौलत से नवाजा है, उन घरों में देखने में आता है जवान नौकर होता है, उसे खुली आज़ादी दे दी जाती है और जवान बेटियां भी उनके साथ कभी कभी सफर के लिए भी निकल जाती है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बड़ी मामूली चीजें होती है, लेकिन हकीकत यही है कि जब दो रहते हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरत है, बीच में तीसरा शैतान होता है जो ख्यालात को लाता है। और अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, तुम शैतान की पैरवी मत करो। शैतान बुराई को मुज़य्यन बनाकर पेश करता है और फिर इंसान उन चीजों में धीरे धीरे मुलविस होता हुआ चला जाता है। जब हमारी बहन बेटे घर से निकले, उन्हें पर्दे का पाबंद बनाए, क्योंकि अल्लाह ने इसको पैगाम हमको दिया है वलियदरिबन बिखुमरिहिन्ना, कि वो अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर, अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाल लिया करें। इन पैगामात के मुताबिक अगर हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, इंशाअल्लाह ये बेहयाई का गिराब गिरेगा और अखलाक इक़दार हमारे बुलंद होते हुए चले जाएंगे। फिर एक अच्छा इस्लामी माशरा और समाज हमको और आपको नजर आएगा। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह जो बेहयाई के रास्ते हैं, अल्लाह उन बेहयाई के रास्तों से हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमें हया की चादर को ओढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें बाहया इंसान बना। ऐ अल्लाह बेहयाई के जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो ज़िनाकारी बदकारी की महफिल है, ऐ अल्लाह उन सब चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मसाजिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उलमाए रब्बानीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो मकरूज हैं उनकी कर्ज़ों की सबील निकाल दे। ऐ रब्बुल आलमीन जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बहनें इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, ऐ अल्लाह उन्हें दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे नौजवान बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं, ऐ अल्लाह उन्हें भी दीन से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा।
رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ عالم اسلام کے احوال پر رحم فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے ہمکنار فرما، اے اللہ مشرکین کو ان کے شرک و ذلیل و خوار فرما دے، اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔